سنیں اور اس سے پہلے کہ کلام خدا کی تفسیر جو ہے وہ ہم سب سنتے، ہم بائبل مقدس میں سے آج کے پیغام کی تلاوت کو سنیں گے۔ جو اپنے ساتھ بائبل مقدس لے کر آئے ہیں، بائبل مقدس میں سے آج کے پیغام کی جو تلاوت کی جائے گی، نئے عہد میں رسولوں کے اعمال اور اس کا تیسرا باب اور تیسرے باب کی 18 اور 19 یہ دو آیات تلاوت کی جائے گی۔ نئے عہد میں سے رسولوں کے اعمال تیسرا باب اور اس کی 18 اور 19 یہ دو آیات آج کے پیغام کے لیے تلاوت کی جائے گی۔ پرانے ایڈیشن کی جو بائبل ہے اس میں صفحہ نمبر 110 ہے۔ سو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس کی اس طرح پوری کی گئی، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ کلام مقدس کی آواز ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ آج ہماری کلیسیا میں بلکہ آج نہیں کچھ دنوں سے اور غالباً پہلے روزے تک سیزن ہے شادی بیاہ کا، اور ہماری کلیسیا میں بہت ساری شادیاں ہیں، اور پھر آج کے دن میں ہماری کلیسیا میں ایک فوتگی بھی ہوئی ہے جس کی بنا پر ہماری اٹینڈنس جو ہے وہ کافی کم ہے۔ میں خدا کا شکر ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب اپنے اس مصروف ترین وقت میں سے خداوند کے نام کو مبارک کہنے کے لیے خوشی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہمارے پیغام کا جو عنوان ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ سو بائبل مقدس میں سے اس مضمون کا انتخاب کرنا یا اس مضمون پر پیغام دینا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ہم تمام توبہ کو جانتے ہیں، لیکن توبہ کی نوبت کب ہم پر آتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ خدا ہمیں وقت دے رہا ہوتا ہے، خدا ایسے حالات بنا رہا ہوتا ہے کہ جس میں ہم توبہ کریں۔ البتہ توبہ کو تو ہم جانتے ہیں، مگر اس کی نوبت کی بابت ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کب خدا ہمیں یہ نوبت دے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مائنڈوں میں توبہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے توبہ کیا ہے؟ لکھت رہے گا بہنوں میں سے، توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کے اقرار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا توبہ ہے۔ بھائیوں میں سے پچھتاوا، اپنے گناہوں کو ترک کرنا، اور کوئی سو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بلکہ تاریخ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم جس منجی خداوند یسوع مسیح کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اور اس ہستی کو ہم تمام اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح در حقیقت ایک مشہور ہستی تھا، اور یسوع مسیح کا چرچا اسرائیل کی چاروں اطراف تھا، اور اس لیے یسوع کے پیچھے ہر وقت ایک بڑی بھیڑ رہتی تھی، اور لوگ ترستے تھے کہ یسوع مسیح کو دیکھے۔ جب خبر ہوتی اور پتہ چلتا کہ یسوع مسیح مومن پورہ میں آئے ہیں، تو مومن پورہ کا ہر شخص جو ہے وہ بھاگے ہوئے یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب خبر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سردار پورے ہے، تو تب بھی مومن پورہ سے لوگ بھاگے جاتے کہ سردار پورہ میں یسوع آیا ہے، ہمیں یسوع کو دے دے۔ اور جب خبر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح شادی پورہ میں ہے، تب بھی ارد گرد کے سارے علاقے کے لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے بھاگتے تھے۔ سپوز یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت تو خداوند
यसु यरदन है, यसु वहां जगह पर है, तो लोग भागे जाते और खुदावंद यसु मसीह को देखना चाहते थे और देखने के लिए तरसते थे, क्योंकि यसु मसीह का चर्चा था, यसु मसीह की मशहूरी थी। और मशहूरी किस बात में थी कि भी ये तो अजीब काम कर रहे हैं। एक बल्लाश शख्स जन्म का अंधा था, उसे आंखें मिल गई है। बल्लाश शख्स जन्म का लगड़ा था, वो तो चलना शुरू हो गया है। बल्लाश शख्स मरता था, वो जिंदा हो गया है। बल्लाश शख्स तो कोड़ की बीमारी, जो बीमारी का इलाज थी, उसने बीमारी ठीक कर दी है। ये मशहूरी दिन ब दिन खुदावंद यीशु मसीह की बढ़ रही थी। और नौबत इस बात पर आगे के गैर अक़वाम के लोग भी यीशु के पीछे रहते थे, पीछा करते थे, सोचते थे कि कभी यीशु यहां से गुजरे, कभी यहां पर आए, हम उसे देखें। इसी तरह लिखा है लूका 19 में, अगर देखें बड़ा मशहूर वाक्या है, वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से होकर जा रहे थे। अब जब खबर होती है यरू वाले यरू के लोगों को कि खुदावंद यीशु मसीह यरू से गुजरेगा, तो लोग जो है यीशु के आने से पहले ही रास्ता में खड़े हैं कि कब वो यहाँ से गुजरे और हम उसे देखें। और बाइबल बयान करती है कि लोगों ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए कि खुदावंद यीशु मसीह को देखें। कुछ साइडों पर खड़े हो गए हैं, कुछ अपने मकानों की छतों पर खड़े हैं, कुछ न कुछ तरीके अपनाए हुए हैं कि यीशु को देखें। और बाइबल बयान करती है कि एक शख्स है जिसका कद छोटा है और छोटे कद वाला भी यीशु को देखना चाहता है, लेकिन उसके पास भी ऐसा जरिया नहीं है कि वो यीशु को कैसे देखे। अब उस छोटे कद वाले ने एक अजीब काम किया कि वो एक दर्द के ऊपर चढ़ गया और दर्द के ऊपर चढ़ कर खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करना चाहता है। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही आप वहां से गुजरे और आप पर भीड़ जो है गिरी पड़ती है और लोग आपको देखना चाहते हैं, जो इस कदर है कि लोग आप पर गिर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि आप जा रहे हैं और जैसे ही आप यरू से गुजर रहे हैं, छोटे कद वाला ज़कई दरख्त के ऊपर बैठा है और आपने खुद दरख्त पर देखा, ज़कई दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। और आपकी नजरें मुनव्वर जब ज़कई पर गिराती है तो ज़कई से आपने हुक्म किया कि ज़कई अब नीचे उतरा। मैं तो अलबत्ता इरादा नहीं करता था, लेकिन तेरे इस अजीब काम को, तेरी इस अजीब हरकत को देखकर आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। दुनिया वहां पर बुलबुलाती है, अजीब तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि ये कैसा खुदावंद है, ये कैसा आपका है, ये कैसा रब्बी है जो गुनाहगारों के साथ खाता है, गुनाहगारों के घर के अंदर जाता है। ज़कई तो बदनामे ज़माना है, ये तो वसूल लेता है, ये तो सूद लेता है, ये तो लोगों से हक लेता है, ये बदनामे ज़माना शख्स है। और इस शख्स के यहाँ ये रास्तबाज गिरता जाता है और यीशु मसीह को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु ने कहा ज़कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज मैं तेरे साथ रफाकत रखूंगा, खाना खाऊंगा मैं तेरे साथ। ज़कई मारे खुशी के बाद नीचे उतर रहा है दर से। अब खुदावंद यीशु मसीह के आगे चलता है, अपने घर में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही अपने घर के दरवाजा के पास पहुंचता है, यीशु मसीह को दाखिल नहीं होने देता, जल्दी से खुद दाखिल होता है और अपने दरवाजा के अंदर खड़ा होकर बाहर यीशु खड़ा है, तौबा करता है। लफ्ज़ तौबा नहीं इस्तेमाल, लेकिन तौबा करता है और तौबा वहां पर इकरार करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद देखो, मैंने ना हक लिया है, मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को बांट देता हूँ, जिससे किसी से मैंने ना हक लिया है उसे चौगुना अदा करता हूँ। और जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, इकरार कर दिया कि उसने ना हक लिया है, लोगों को सताया है, दुख दिया है, दर हकीकत ये तौबा थी। और तौबा की नौबत खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अता फरमाई कि आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। इससे बड़ी नौबत ज़कई के लिए है नहीं थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर के दरवाजा के सामने खड़ा है और ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर तौबा करता है, इकरार करता है, पछताता है और कहता है कि खुदावंद अब मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को देता हूँ और जिससे ना हक लिया उसे चौगुना अदा करता हूँ। और तब ही आपका कदम मुबारक उसके घर के अंदर जाता है और जैसे ही आप उसके घर के अंदर उसकी छत के नीचे आ गए तो आपने बाआवाज़ बुलंद तमाम अपने हवारियों के साथ ये कहा कि आज इस घर में, आज इस घर में, आज इस घर में। इसका मतलब है कि तौबा नजात की बाबत पैगाम है और ऐसे मौके खुदा हमें देता है कि हम तौबा करें और नजात हासिल करें। और तौबा है क्या? इसके लुग़वी मायने है पछताना, बाज आना, रजू लाना, फिरना, वापस आना, लौटाना, ये तौबा है। खुदा
लोगों को मुकर्रर करता है, हिस्सा ब हिस्सा अपनी खिदमत देता है। खुदा ने मुझे यहां पर मुकर्रर किया और मेरे हिस्से में मुझे खिदमत दी। खुदा उससे पहले और जमानों के अंदर खुदा ने अपने नबियों को रसालत दी है, अपने नबियों पे पैगंबरों को भेजा है। और बाइबल बयान करती है कि हजरत यर्मिया बिन खलकिया को खुदा ने यरूशलेम में रसालत देकर मुकर्रर किया हुआ था। और हजरत यर्मिया बिन खलकिया जो है यरूशलेम के अंदर रसालत लेकर खुदा की खिदमत कर रहा था। और खुदा यर्मिया के वसीला से बोलता है, यर्मिया के वसीला से कलाम करता है। यर्मिया को खुदा कहता है कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे यहाँ पर रसालत दी है, तू मेरा पैगंबर है, अब यरूशलेम से पैगाम कर, यरूशलेम से कलाम कर। और खुदा यर्मिया से कलाम करता और यर्मिया जाकर उम्मत यरूशलेम से जाकर बातें करता, कलाम करता। और यर्मिया 8वां बाब पर उसकी 4 से 6 आयत में लिखा है। और वहां पर खुदा फरमाता है कि यर्मिया को उनसे कह दे कि खुदा यूं फरमाता है क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते, या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता, तो फिर यरूशलेम के लोग क्यों हमेशा की बरगश्ती पर अड़े हैं? मगर वो मकर से लिपटे रहते हैं, वो वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने किया क्या है। यर्मिया देख, मैंने कान लगाया है, यर्मिया देख ये लोग कैसे अजीब है, क्या कोई गिरकर उठता नहीं है? मगर ये सारे लोग अपनी बदी पर अड़े हुए हैं, अपनी बरगश्ती पर कायम है। मैं खुदावंद ने कान लगाकर खुद सुना है, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं इनके दरमियान मौजूद रहता हूँ। और जब ये बोलते हैं, जब ये बातें करते हैं, जब ये कलाम करते हैं, जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, मैं इनके दरमियान आता हूँ। मैंने कान लगाया, मैंने सुना उनकी बातें ठीक नहीं है। और कोई भी अपनी बुराई से तौबा करके ये नहीं कहता कि मैंने ये क्या किया, बल्कि ये दूसरों पर डालते हैं जिसका भागे अदन में हवा ने गुनाह किया और हवा ने एहसान पर डाल दिया। और खुदा ने जब आदम से पूछा, आदम कहता है कि खुदावंद वो औरत जो तूने मेरे साथ रखी है, ये तो वही कहानी दोहराते और ना तो इकरार करते हैं, ना तो ये कहते हैं, ना तो तौबा करते हैं। ये तो कहते नहीं है कि मैंने ये क्या किया, ये तो तौबा करते की नौबत ही नहीं रखते। यर्मिया से क्या है, इनसे बात कर रहा है। हजरत हिजकिय्याह बिन बूजी को भी खुदा ने यही कहा। हिजकिय्याह बिन बूजी को खुदा ने रसालत देकर इस्राएल पर मुकर्रर किया है। और हिजकिय्याह 14वें बाब की 6 आयत में खुदा हिजकिय्याह से कहता है, इसलिए तू बनी इस्राएल से कह, तो बनी इस्राएल से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तौबा करो और अपने पुरतों से बात आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ लो। वे खुदा तो ऐसे मौके देता है, खुद खुदा पैगाम देता है और खुदा अपने नबियों के वसीला से पैगाम देता है, वे तौबा करो, मैंने तुम्हें तौबा की नौबत दी है। और जब जब खुदा नौबत देता है, तब तब खुदा अपने बंदों को मुकर्रर करता है। और आज दर हकीकत अगर हम तमाम के तमाम खुदा के कलाम में से इस पैगाम को सुनते हैं कि तौबा करो, तो दर हकीकत ये नौबत है तौबा की। और आज खुदा हम तमाम को नौबत दिए हुए हैं। आज खुदा ने मुझे अपना पैगाम देकर यहाँ पर मुकर्रर किया हुआ है। और आज खुदा मेरे वसीला से मैं नाचीज के वसीला से तौबा की नौबत की बाबत में पैगाम देता है। इसका मतलब है कि खुदा चाह रहा है कि हम तमाम अपनी जिंदगियों से तौबा करें, अपनी जिंदगियों के तमाम उन कामों से तौबा करें जो हमें बरकता करती है, और उन तमाम कामों से जो उस पर हम अड़े हुए हैं, जिससे हमारी बरकती होती है, उससे हम इनकार करें, भागे और कहते कि हाँ खुदावंद मैंने इकरार करके कहे कि मैंने ये गलत किया। और आज उसने नौबत दे दी है। और बाइबल में लिखा है कि मलाकी नबी के बाद 2000 साल गुजर चुके थे, खुदा की तरफ से कोई नबी पैगंबर नहीं आया। और 2000 साल गुजर जाने के बाद एक नबी खुदा भेजता है जिसका नाम यूहन्ना अल-तकवागी है। और यूहन्ना को खुदावंद ने भेजा था कि ये खुदा के बेटे के लिए रास्ता तैयार करे। और यूहन्ना अल-तकवागी जो है ये यरदन के किनारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और तबलीग कर रहा था, और तबलीग के साथ खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए रास्ता बना रहा था और लोगों को तबलीग करके बता रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे बड़ा है, मैं
उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं, मैं तो कुछ नहीं, वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे जोरावर है और वो जलाली है, मैं तो उसका रास्ता तैयार करता हूँ, मैं तो बेअमान में रास्ते तैयार करने वाला हूँ, मुझे मेरे हक में आवाज मिली है। और जो रोना अस्तगबानी जो है यरदन के किनारे लोगों को बपतिस्मा देता है और तबलीग करता है, और तबलीग जो है इसकी जोर के साथ यही है, और बुलंद आवाज से तबलीग में लोगों को कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इस बात की तबलीग कर रहा है, कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जो कोई उसके पास आता उसे कहता है तौबा कर क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आती है। जो कोई भीड़ उसके सामने खड़ी उनसे कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और इतने में लिखा है, बाइबल को मुकद्दस बयान करती है कि आप यरदन के पानी में से चलते चलते उसकी तरफ पहुंचे, और जैसे ही आप उसकी तरफ पहुंचे तो रूह आपके गर्दों पर आकर बैठ गया है, और आपने भी वहां पर से अपनी तबलीग का आगाज किया है। जब आपने अपनी तबलीग का आगाज किया तो आपने भी अपनी तबलीग को इस मौजू पर शुरुआत के साथ आगाज करते हुए कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बात सही नजदीक आ गई है। इसका मतलब है ये जो तौबा का पैगाम है बड़ा खास पैगाम है। नबियों पैगंबरों के वसीला से खुदा ने तौबा की बाबत हमें पैगाम दिया है, और जब मेरे आका ने खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तबलीग का आगाज किया है तो पहला पैगाम उम्मत को यही दिया, पहला पैगाम तमाम दुनिया को यही दिया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये 2000 साल पहले की बात है, और 2000 साल के बाद अब अंदाजा करें कितनी नजदीक हो गई। गुनाहों से तौबा निजात का बाइस है, और फिर हमें आसमान में यकीनन जगह देगी। और जब तक